Students, good morning. Once again, I welcome you in the today's science class. As you know, yesterday I told you wonderful story about the discovery of silk. If you are interested, once again I want to tell you. In Hindi language, I explain something. 27th BC के अंदर सिल्क को चाइना में फाइंड आउट किया गया. उसके फाइंड आउट करने के पीछे एक स्टोरी है. वहां पर कोई एक एम्प्रेस थी चाइनीज, उसका नेम था शी लोंगची. उन्होंने अपने हस्बैंड एम्परर हेंग टी से पूछा कि पता करिए हमारे गार्डन के अंदर मलबरी लीव्स कैसे खराब हो रही हैं. विद द हेल्प ऑफ लेबर्स और they find out that caterpillar feeding on the leaves and building their cocoons. बाद में पता लगा कि जो मलबरी लीव्स हैं, मलबरी ट्री की, शहतूत बोलते हैं इसको, उसके अंदर कैटरपिलर जो कि लार्वा ऑफ सिल्क वर्म होते हैं, उन्होंने अपने वहां पर उसको ईटिंग करना शुरू कर दिया और ककून्स बना लिए अपने. इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसने क्या करा, उन्होंने हॉट वाटर के अंदर उन ककून्स को डाल दिया सबको एज ए पनिशमेंट. After some time, she was surprised to find a delicate single thread unwind itself. उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस हॉट वाटर में डालने के कुछ टाइम बाद उसमें से एक सिंगल थ्रेड जो है वो अनवाइंड अपने आप होता गया उसमें. और दिस वाज हाउ सिल्क वाज डिस्कवर्ड. और इस तरह से फर्स्ट सिल्क की डिस्कवरी हुई इन द चाइना. नेक्स्ट वन, silk production was kept a secret by Chinese for 30 centuries. और इस बात को 30 centuries तक as a secret रखा गया by the Chinese. But the trade this material with the other countries. But they traded this material with other countries. Thus the trade route is known as Silk Route was born. और जिस रास्ते से वो बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, उसका नेम डाल दिया सिल्क रूट. इट कनेक्टेड चाइना टू सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न इंडिया, रोमन एम्पायर एंड द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी. ये तो वो मैटर था बेटा जो हमने आपको बताया. दैट इज यस्टरडे मैटर. Now today I want to tell you what, please try to understand, very interesting fact, that is life cycle of a silk moth. Life cycle of a silk moth. Look sir, what happened? Please remember, there are 4 stages in the life cycle of a silk moth. ध्यान से सुनना. Stages in the life cycle of silk moth are: in which number first, that is the egg. Second number, larva. Third number, pupa. And fourth number, adult. Please remember, these are the stages in the life cycle of silk moth. Now what happen in them? First stage, the female silk moth lay egg which hatch into the black worm like larva.
The larva of a silk moth is known as caterpillar और silkworm. तो पहली स्टेज में क्या होता है, फीमेल सिल्क मोथ जो होता है वो एग लेइंग करता है, एग प्रोड्यूस करता है, कहां पर, ऑन द मलबरी लीव्स, और कुछ टाइम बाद वो ब्लैक वोम जैसे स्टेज में दिखाई देंगे आपको. दैट इज द लार्वा स्टेज. प्लीज रिमेंबर द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ. The larva of silk moth is known as silkworm or caterpillar. Please remember, this is very important fact. The larva of silk moth is known as silkworm or caterpillar. This is the first stage. First stage में क्या होगा, फीमेल सिल्क मोथ जो होगा वो अपने एग्स को हैच करेगा और कुछ टाइम बाद वो लार्वा स्टेज में आ जाएगा जो ब्लैक वोम जैसी दिखाई देगी. सिल्क मोथ के लार्वा का नेम होगा कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म. Next number, the larva feed on mulberry leaves continuously and grow in size. Second step में क्या होगा, वो लार्वा जो बना वो मलबरी लीव्स को, जो स्मॉल स्मॉल लीव्स होती हैं, सॉफ्ट लीव्स होती हैं, उनको एज ए फूड काम में लेता है और अपनी खुद की ग्रोथ करता है. ड्यूरिंग दिस टाइम इट शेड इट्स स्किन 4 टाइम्स और 4 टाइम्स इसकी ओल्ड स्किन हट करके न्यू स्किन आती है. ऐसा 4 टाइम्स चलता रहता है. The process of shedding skin to grow a new one is known as molting. Please try to understand. Molting का मतलब होता है कि सिल्क वॉर्म के अंदर ओल्ड स्किन रिमूव होकर के नई स्किन आती है. उसी प्रोसेस का नेम होता है molting. Please look here now. I am writing on the board the process of shedding. The process of shedding the skin to grow. The skin to grow a new one is known as molting. Known as molting. Okay sir, if anyone can ask to you, then you will say what is the means of molting. This is the second stage. At the end of this period, it climbed the branch of a tree. और जैसे इसकी मोल्टिंग स्टेज खत्म हो जाती है उसके बाद वो अपनी ब्रांच के ऊपर चढ़ जाता है, लटक जाता है. itself by weaving a net, एक नेट बना करके उसके ऊपर लटक जाता है. Then it start spinning a cocoon और फिर ये cocoon बनाना शुरू करता है. This is the third stage. अब आगे की बात ध्यान से सुनिए. The salivary gland present in the larva's head secrete a sticky fluid which is wound around their body in a long continuous thread. ध्यान से सुनिए. I say everything in Hindi language also. Salivary gland सिल्क वॉर्म के
हेड के अंदर अवेलेबल होती हैं और वो अपने अंदर से एक स्टिकी लिक्विड को सीक्रेट करती हैं, दैट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। और वो धीरे धीरे चारों तरफ, उस लिविंग बॉडी के चारों तरफ सॉलिडिफाई होकर के और कंटिन्यूअस थ्रेड की फॉर्म में लिपट जाता है। ओके, द प्रोटीन सॉलिडिफाई व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद एयर। जैसे जैसे वो लिक्विड होता है, स्टिकी फ्लूइड, वो एयर के कांटेक्ट में आने पर सॉलिडिफाई होकर के और सिल्क फाइबर बनाता है। The head swing from side to side and draw the figure 8। और उस बीच में जो लिविंग बॉडी होता है वो अपने हेड को, जैसे मैथ्स का 8 नंबर नहीं होता, 8 अपन लिखते हैं, उसकी फॉर्म में अपने हेड को घुमाता है और उसके चारों तरफ सिल्क फाइबर अपने आप लिपटता चला जाता है। ओके, द प्रोसेस टेक प्लेस 3 to 7 days टू कंप्लीट। और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम 3 डेज और ज्यादा से ज्यादा 7 डेज का टाइमिंग लगता है। The larva continue to develop inside the cocoon। और cocoon के अंदर लिविंग बॉडी डेवलप होता रहता है। This is called the pupa stage। तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे pupa stage। ओके, when the worm mature into an adult moth, it secretes a fluid which dissolves the silk fiber of the cocoon so that it can emerge out of it। मतलब कहने का क्या हुआ कि जब अंदर का लिविंग बॉडी प्यूपा से एडल्ट स्टेज में आता है तब वापस से एक बार दूसरा लिक्विड और सीक्रेट होता है और वो जो भी सिल्क फाइबर लिपटा हुआ है उसको डिसोल्व कर देता है और उसमें से न्यू लिविंग बॉडी बाहर निकलता है। एक्चुअली दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ। यहाँ पर 2 कंडीशंस होती हैं। अगर आपको सिल्क फाइबर चाहिए तो सिल्क मोथ की लाइफ नहीं मिलेगी, और सिल्क मोथ की लाइफ चाहिए तो सिल्क फाइबर आपको नहीं मिलेगा। ओके, प्लीज रिमेंबर, लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा दैट इज द एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट स्टेज। लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ इज नोन एज सिल्क वर्म और कैटरपिलर। मोल्टिंग पढ़ लिया हमने। इसके बाद सारी बात पढ़ने के बाद एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, लाइफ साइकिल में पूरी स्टेज हमने बता दी। अब अगर न्यू लिविंग बॉडी बाहर निकलता है तो आपको सिल्क फाइबर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोबारा से दूसरा लिक्विड सीक्रेट होता है और वो सिल्क फाइबर को डैमेज कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। और अगर आपको सिल्क फाइबर चाहिए तो फिर इस स्टेज में उनको हॉट वाटर के अंदर डालना पड़ता है, बॉइल वाटर में, तब सिल्क का जो लिविंग बॉडी है, न्यू लिविंग बॉडी, उसकी लाइफ फिनिश हो जाती है। Okay, this is the end for today. Thank you very much, or we will meet in the next class tomorrow.